We'll get to hubs, of course, but I was chatting with you before the camera rolled, and you have a passion for acting, जो कि even in your character in hubs, वो एकदम नजर आया था कि यार इस बंदे को है, she knows what she's doing, and there was an interest immediately in that character who was not the lead, but had a track that was interesting. I'm very glad to hear that. मुझे अच्छा लग रहा है कि जो मैं कर रही हूँ वो उस तरह से कंसीव भी हो रहा है. हाँ. But हाँ, ये true है. I think कि मैं इसको बहुत seriously लेती हूँ. है ना? I read my scripts शुरू से आखिर तक. हाँ. मैं डायरेक्टर को अपने बहुत बॉदर करती हूँ. मेरे छोटे छोटे सवाल होते हैं. और जब मैं पढ़ रही होती हूँ मैं तब भी अपनी even dresses और makeup सोच रही होती हूँ, color भी and everything and I completely become Bano. You become Bano. You become Bano. So let's rewind a little bit. Acting career आपका शुरू हुआ, we can say around mid 2018. So it's a young 2017, 18. Yeah. It's a young career abhi, and you just taken off. But आपने जो ड्रामे किए, and you have to excuse me for reading out the names because I forget. But जो कुछ थे बहुत prominent, उनमें से धोखा for C Prime. A fantastic performance, by the way. And then there was Faltu Ladki, and then there was Bichari Nadia, Adhuri Kahani, Badnaseeb, and then you had one of the episodes of Oy Moti. These are some really depressing names, Dania. How are you choosing your projects? I wanted to ask you. And then Bano and Hubs, these are some really depressing names. शायद अट्रैक्टिव इस तरह की चीजें करती हैं. ऐसा क्यों है? अब जब फालतू लड़की was written by फसी बारी खान जी. और मजहर मोइन ने डायरेक्ट किया था and I think मेरे लिए वो बड़ा एक आइडियल ड्यूओ था and something that मुझे मतलब बस एक कॉल आई and I just could not believe के yeah and फसी बारी खान writes generally uplifting stories. हाँ. Yes. तो और वो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था because मुझे एज अ राइटर वो इतना इन्वॉल्व कर रहे थे and हम साथ वो लिख रहे थे और बहुत शुरू में उन्होंने मुझे एंगेज कर लिया था. वो भी लिख ही रहे थे और मुझे बता रहे थे. उन्होंने मज़हर का पर्सपेक्टिव उस पर जो था वो मुझे एंगेज किए हुए थे. और नाम के लिए सबने मुझसे ये कहा, ये कैसा नाम है. एंड मुझे बस मज़ा आ रहा था कि ये इसका नाम. I'm working with सामिया मुमताज़, हिना दिल पजीर, सलमान शाहिद. There was Imran Ashraf there. Yes. Jinan Hussain. Right. So, काफी सारे लोग थे. यासरा का एक अलग ट्रैक था. यासरा रिजवी थी, सिमी राहील थी. But मेरा बहुत क्लोज काम जो था वो सलमान शाहिद, हिना दिल पजीर, सामिया मुमताज. And मैं कहती हूँ मैं बहुत लकी हूँ. Right. So how are you choosing your scripts? आपका एक तो let's go back a little further back. Acting से family का कोई ताल्लुक नहीं है. There are no actors in the family. No. At least your maiden part of the family, right? No actors in your family, and you were the first. And you moved from Islamabad to Karachi, and then you started working behind the cameras. But मैं actually grow up कराची में हुई. आप grow up. तो मैं move बड़ी young हुई थी. मैं छोटे से time के लिए बस गई थी वहाँ पे. Right. तो फिर आई. But you were born in Islamabad. हाँ. You were born in Islamabad, और आपके parents Islamabad में ही हैं. Last 10 years से अब वो वापस चले गए. I mean, you can't blame them. You can't blame them. I think my father was also born in Pindi. अच्छा. जब इस्लामाबाद था भी नहीं. हाँ. तो I think एक आपकी age में you want to go back to your hometown. Yeah, right. Also, this is a much more peaceful place to be, especially when you're not in the rigmarole of professional life. Yes. Retirement के लिए तो बहुत अच्छा है Islamabad और yeah. But when you came to Karachi, you started working behind the scenes. Yes. And why? Because हमारे यहाँ acting schools नहीं है. सिर्फ कुछ है नापा टाइप. हाँ. वो भी अब जाके थोड़े हो गए. Back then उनका इतना समझ में नहीं आता था कि क्या है वहाँ पे क्या नहीं है, और अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप काम कैसे कर रहे हैं. But hands-on learning वाली जो experience थी, फिर I looked around, I looked across the borders, I looked across internationally कि बहुत सारे actors शुरू ज़्यादातर off camera करते हैं. They work on sets. Right. They learn. There have been some big names who are sons and daughters of big actors. Yeah. लेकिन उन्होंने भी काम अक्सर yeah behind the camera शुरू किया. Right. And I think it's a very very good thing. One should do it.
बहुत सीखने को मिलता है, ये भी पता लगता है, हर चीज़ पता लगती है, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोडक्शन कैसे होती है, और एक्टिंग तो करते हैं लेकिन एक्टर अपने आप को सेट पे कैसे कैरी करता है। right. आप अच्छे एक्टर्स भी देखते हैं, आप बुरे एक्टर्स भी देखते हैं, आप अच्छे ह्यूमन बींग्स भी देखते हैं, बुरे ह्यूमन बींग्स भी देखते हैं, तो आप काफ़ी लर्न करते हैं। इट्स अ वेरी गुड लर्निंग प्रोसेस, राइट। एंड द गुड थिंग इज यू वर पेशेंट इनफ कि आपको ये नहीं था कि मैं एकदम एक्टिंग करूं, एकदम मैं प्रोमिनेंट हो जाऊं या एकदम मुझे शोहरत मिल जाए, ऐसा नहीं था। आई बिलीव हर चीज़ के लिए ना आपको एक ग्राफ बनाना पड़ता है, यू शुड ऐसा स्लो एंड स्टेडी, learn and grow. हाँ। So that, मगर मेरे लिए प्रोडक्शन में आना आसान नहीं था। नहीं था, क्यों? बिकॉज जब भी मैं जाती थी शुरू में कि जो मुझे प्रोडक्शन करनी है, वो कहते थे यू आर अ गुड लुकिंग गर्ल, आप एक्टिंग क्यों नहीं करती? तो मुझे उन्हें समझाना पड़ता था वो मैं करूँगी, लेकिन अभी मुझे ये वो है मेरी मुझे थोड़ा सीखना है। तो who did you go to first, मतलब प्रोडक्शन के लिए भी? Basically one of my school friends who's a photographer. He's known as 3H. Okay. Hassan Habib Hashmi. Okay. बहुत अच्छा सा फोटोग्राफर, आई थिंक जो भी उसके साथ काम करता है बहुत खुश होता है। ये और बात है कि उसने आज तक मेरा कोई फोटो शूट नहीं किया, जस्ट बाय द वे। तो आई जस्ट कॉल्ड हिम, आई वाज लाइक लिसन मैं आ गई हूँ, क्या करें? हाँ। तो उसने कहा अच्छा कुछ करते। तो ही got me in touch with सतीश आनंद। Okay. उनके पास में गई, उन्होंने मुझे पहले कहा व्हाई नॉट एक्ट, तो मुझे समझाना पड़ा थोड़ा, और पहले दिन में प्रोडक्शन पे गई तो उन्होंने उस वक्त थोड़ी नीयत डगमगाई कि यार अब सब कह रहे हैं तो मैं एक्टिंग ही कर लूं। एक्चुअली नहीं, आई वाज वेरी एडमेंट कि मुझे पता था मुझे पहले बिहाइंड द कैमरा काम करना है। हाँ, ओके। और उन्होंने मुझे एक छोटे से साइड रोल के लिए पुश किया एज अ गेस्ट अपीयरेंस कि ये कर लो, बस फिर मैं वहां से भाग गई। नहीं, क्योंकि एक्टिंग नहीं करनी थी, आई वांटेड टू गो द राइट वे। तो आई वाज लाइक नहीं एक्टिंग नहीं करनी मुझे। फिर बहुत कोशिश की कहीं पे, इट वाज ऑल अबाउट एक्टिंग कर लो। तो वन डे आई गिव अप। मैंने कहा कि ठीक है, नहीं होता प्रोडक्शन, नहीं होता, राइट, आई ट्राइड माय बेस्ट, मुझे वो तरीका चाहिए था, बट ठीक है, लेट्स डू इट। सो द सेम फ्रेंड, ही वाज अ स्टूडेंट ऑफ सैयद अली रजा सामा। ओके। सो वो मुझे उनसे मिलाने गए, उसने कहा कि इनसे बात करो एंड ही माइट हैव अ रोल। मैं गई, मैंने सीन भी पढ़ा, मैंने स्क्रिप्ट भी पढ़ा, मैंने ऑडिशन भी दिया, बट बिकॉज आई थिंक आई एम गुड विद कम्युनिकेशन, तो मैंने उन्हें बता दिया 15 मिनट में कि ये मेरा आइडिया था, ये हुआ, ये मैं करने आई थी, मैं इस तरह आपके पास आई हूँ। और आई डोंट नो कि वो आपकी चीज़ें कुछ इस तरह से होती हैं, यू नो, यूनिवर्स आपके लिए चीज़ें बना रहा होता है। उनका जो प्रोडक्शन हेड था, उसका कोई दूसरे किसी उसके साथ डेट्स का क्लैश हो रहा था, और 1 हफ्ते की शूट हो चुकी थी, एंड ही इज लाइक तुम तो बड़ी कॉन्फिडेंट हो, तुम्हें हाउ अबाउट यू टेक अप द प्रोडक्शन? ओके, नॉट एन असिस्टेंट, नॉट you're saying कि आप हेड ऑफ प्रोडक्शन आ जाओ। लाइक ओसामा, ही इज लाइक आई नो यू विल डू इट। लाइक ओसामा, आई हैव नेवर बीन ऑन अ सेट, मुझे नहीं पता। He's like, but I know कि तुम कर लो। ये किस चीज का सेट था, कौन सी प्रोडक्शन थी? This was दिले इश्क, एक जियो का ड्रामा था। एजाज असलम, नीलम मुनीर, आयशा खान एंड कमरान जिलानी, अली अब्बास, so all these people, and it was a big production again. They were all big actors, and I was like, Sama, ये तो बहुत बड़ी बात है। Apparently उन्हें बहुत कॉन्फिडेंस था मुझ पे। मैंने उनसे सिर्फ एक बात की, मैं कहा ओसामा 2 हफ्ते मैंने बहुत सारे सवाल पूछने हैं, आप डांटेंगे नहीं, मुझे सिखाएंगे, बिकॉज आई हैव टू लर्न। ही इज लाइक ठीक है। एंड ओसामा, आई थिंक क्योंकि उनकी नेचर है टू टीच, ही वाज अ टीचर, राइट, आल्सो, तो आई थिंक दैट वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी दैट आई गॉट। मैंने इतना सीखा, और अपेरेंटली लोग ओसामा से बड़ा डरते हैं एज अ डायरेक्टर, राइट, कि वो बड़ा डांटते हैं, बड़े वो हैं, बड़े खतरनाक हैं, but I think I worked very well. मुझे समझ आ गई थी कि इनके साथ काम कैसे करना है, and we were a very good team. बहुत सीखा, और I'm so glad that he was my teacher. So that was my first. That's how I started. और मेरे जो लाइन प्रोड्यूसर थे उस वक्त, आरिफ कमांडो, उनका 12 साल का एक्सपीरियंस था। मैंने सब कुछ उनसे सीखा। I was just ready to learn. तो मैं तो उनके साथ हर जगह, चाहे इम्प्रेस मार्केट जा रहे हैं, चाहे प्रॉप्स के लिए जा रहे हैं, चाहे लोकेशन के लिए जा रहे हैं, मैं हर जगह पहुंची हुई होती थी। मैंने अपना बैकपैक लिया हुआ होता था, एंड आई वुड बी जस्ट एवरीवेयर। तो मैंने तो पूरा एडवांटेज लिया उसमें, मैंने सीखा।
एंड देन मैंने फिर जीके फिल्म्स के साथ वहीं से एक प्रोजेक्ट एज अ स्टाइलिस्ट Okay. पे गई मैं, which was still fine because I was working You behind were the learning the scenes. ropes, मतलब पूरा. Yeah,